Hello friends, I welcome you all. Let's have paper discussion of taxation part B, that is your indirect tax. But including MCQ we are going to discuss everything. आपको मालूम है MCQ आपका IDD का it was of 15 marks. 2 great case studies of 6 marks each having 3 questions of 2 marks each and plus 2 independent MCQ, 1 for 2 marks and 1 for 1 marks. But case study I will say case study was great. अगर आपके पास conceptual knowledge है तो definitely you will be able to answer. Otherwise कहीं ना कहीं वो आपको अटका सकता है. But the concept अगर आपका strong है then done, आप कहीं नहीं अटकोगे. चलिए शुरू करेंगे. तो सबसे पहला आपका जो केस स्टडी केस सिनेरियो 1 वाज फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, सो मैं इसको टच नहीं करूंगा. केस सिनेरियो 2 आल्सो फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स. गोइंग फर्दर तो अपना केस सिनेरियो नंबर 3 विच वाज फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स. चलिए जो भी हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं एज पर द प्रोविजन दीज आर अवर सजेस्टेड बेसिकली व्यूज. इंस्टीट्यूट का व्यू में डिफर बट मेजॉरिटी यही होना चाहिए. ठीक है. चलिए संदीप एक रजिस्टर्ड पर्सन इन पुणे महाराष्ट्र. संदीप एक रजिस्टर्ड पर्सन है. आई विल से अगर वो इंडिविजुअल है मींस ही इज अ सोल प्रोप्राइटर. हमेशा डिस्कशन करते करते आगे बढ़ो. एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग सर्विस to various registered and unregistered person. It means he is doing B2C as well as B2B. बहुत बढ़िया सर. During the month of October, he conducted training camps at different city in Uttar Pradesh for general public and received 345. सब बोलना क्या चाहता है बट ये आपका फर्स्ट आउटवर्ड सप्लाई. ठीक है सर, ये पहला आउटवर्ड सप्लाई एंड वो भी B2C बिकॉज आपने सप्लाई किया जनरल पब्लिक को मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन. ही वॉज हायर्ड बाय अरियन फार्मा लिमिटेड रजिस्टर्ड इन गोवा to provide training to its employee for total consideration 2,25,000. The training was given to 20 employee at Mumbai, but this is nothing but this is again your second outward supply. ठीक है सर, second outward supply but this time it is B2B because your recipient Arihant Limited is registered. Going further, Sandeep also gave his residential property in Mumbai to Arihant Private Pharma Limited for the stay of employees who joined the training. 10,000 per person was additionally charged by Sandeep for the period of stay of 30 days. Can I say this is my third outward supply? सर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया ठीक है लेकिन एग्जाम नहीं करना एंड द ट्रांजैक्शन इज स्टिल B2B बिकॉज आपने एम्प्लॉयज के रहने के लिए दिया बट खर्चा किसने उठाया? अरिहंत फार्मा लिमिटेड ने. सो कैन आई से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी given to registered person, sir this service is taxable but covered under RCM. 10,000 रुपए का आपने चार्ज किया पर पर्सन एंड टोटल एम्प्लॉयज कितने थे? 20. सो अमाउंट विल बी 2 लाख रुपीस. सो दिस इज योर आउटवर्ड सप्लाई बट कवर्ड अंडर RCM. ठीक है. उसके बाद में संदीप हायर्ड अ बस. ये मतलब हियर इट इज योर इनवर्ड सप्लाई स्टार्टेड. फर्स्ट संदीप हायर्ड अ बस फ्रॉम रवि who is registered in Maharashtra at 50,000 for 30 days to transport trainings. The bus has enough seating capacity to transport 20 trainees. Good sir. Cost of fuel is included in the consideration paid. Sir इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? Yes, ये कहीं ना कहीं तुमको RCM की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है. Renting of motor vehicle where fare includes fuel charges. करेंगे बात अगर रिक्वायरमेंट होगी तो. देखते हैं. सेकेंड इनवर्ड सप्लाई संदीप ऑल्सो रिसीव्ड सिक्योरिटी सर्विस
फ्रॉम प्रोटेक्ट यू सिक्योरिटी लिमिटेड फॉर 35,000. दिस इज योर सेकेंड इनवर्ड सप्लाई. अगेन कहीं ना कहीं आरसीएम के साइड में सोच सकते हैं, क्योंकि नाम क्या है, सिक्योरिटी सर्विस. ठीक है सर. ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स वेर एवर एप्लीकेबल. रेट ऑफ जीएसटी आर 9,918 for CGST, SGST and IGST. Subject to the information given above, all other condition for availing ITCs are complied with. ITC का सारा condition fulfilled है. Based on the above information, choose the most appropriate answer for 9 to 11. पहला, amount of interstate outward supply on which Sandeep shall pay tax. इस Sandeep is a supplier. आपको वो interstate supply बताना जहां पे Sandeep has to pay tax. कहने से only forward charge वाला outward supply, only forward charge वाला outward supply, because Sandeep is a supplier. ठीक है सर. तो मेरे पास 3 आउटवर्ड सप्लाई था, बट तीसरा तो आरसीएम वाला है, तो अभी के लिए इग्नोर. बचे 2, लेकिन उसमें से भी चेक करना पड़ेगा क्या वो इंटर है, क्या वो इंटर है. सर ये तो बोला ही नहीं. ध्यान से देखो, लोकेशन दिया था. और सोचो जरा, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस. अगर आपने ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस दिया किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. अगर आपने दिया किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन वेयर द ट्रेनिंग इज एक्चुअली हेल्ड. सो लेट्स डिस्कस. तो पहला जो हमारा ट्रांजेक्शन है B2 से. सर संदीप कहां का, पुणे. तो माय LOS इक्वल टू पुणे. ठीक है सर. पहले केस में ही कंडक्टेड ट्रेनिंग कैंप एट डिफरेंट सिटीज इन उत्तर प्रदेश फॉर जनरल पब्लिक, मतलब अनरजिस्टर्ड B2C. सब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, बट फर्स्ट केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द इवेंट इज हेल्ड, वेयर द ट्रेनिंग इज हेल्ड. तो कहने से LOS POS द ट्रांजेक्शन इज इंटर. तो पहले का अमाउंट मिल गया अपने को 3,45,000. ठीक है सर. व्हाट नेक्स्ट. He was hired by Aryan Pharma Limited, registered in Goa. Can I say second service is B2C and sir registered को दिया तो, but a place of supply shall be location of recipient, location of Aryan Pharma, that is Goa. So again LOS Pune, POS आपका Goa. So the nature of supply is inter. तो this is the second case जो अपने को consider करना पड़ेगा. ठीक है सर. तो माय टोटल अमाउंट इज 345 प्लस 2,25,000. तो 345 प्लस 2,25,000, इट मेक्स योर 5,70,000. बिकॉज आपको क्या देना था, संदीप का वो आउटवर्ड सप्लाई जो इंटर है एंड जहां पे संदीप को टैक्स पे करना है, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वाला है तो आपका आउटवर्ड सप्लाई, बट संदीप को टैक्स नहीं देना बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर आरसीएम. डन सर. अमाउंट ऑन विच संदीप इज रिक्वायर्ड टू पे आरसीएम. सर आरसीएम में टैक्स कोई पर्सन का पे करेगा. अगर मैं संदीप, मैंने कोई सेल किया जो आरसीएम में है, तो मेरा रिसिपिएंट टैक्स भरेगा. संदीप को आरसीएम में टैक्स भरना कब आएगा, जब वो संदीप का सेल नहीं परचेज है, दैट इज योर इनवर्ड सप्लाई. सो लेट्स टॉक अबाउट इनवर्ड सप्लाई. और हमने देखा था यहां पे 2 इनवर्ड सप्लाई है एंड दोनों कहीं ना कहीं आरसीएम की तरफ जा रहे थे, लेकिन चेक करना एक्चुअल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. देखते हैं. पहला, संदीप हायर्ड अ बस फ्रॉम रवि at 50,000 for 30 days and the cost of fuel is included. बट इतना सब मेरे को नहीं समझता. अगर मैं बात करूं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सर कब अप्लाई होएगा, व्हेन. पहला, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लाइंग टू recipient should be body corporate.
देन ओनली आरसीएम, और उसमें भी सप्लायर हैज द ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम आरसीएम टू एफसीएम वेयर दे आर रजिस्टर्ड एंड इशूइंग इनवॉइस। तो एक तो आप सीधा सीधा देखोगे तो संदीप ने रवि से बस हायर पे लिया और रवि रजिस्टर्ड है, तो पहला तो वो हिंट हो गया फॉरवर्ड चार्ज। अगर वैसा नहीं भी सोचना तो कहने से सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो सर सप्लायर कौन, रवि, यस इंडिविजुअल है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, डन। सेकंड रिसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसिपिएंट हमारा कौन है, संदीप जिसने सर्विस लिया, वो भी तो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। तो ऐसे केस में सिंस संदीप इज नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, बट आरसीएम विल नॉट अप्लाई, आरसीएम विल नॉट अप्लाई, ठीक है। लेकिन याद रखना ये ऐसा सर्विस है जहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में सर्विस आपको मिलेगी ये, बट यू विल गेट पूरा का पूरा आईटीसी। सर हमने सुना है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक होता है, बट आपने मोटर व्हीकल रेंट पे लिया ताकि आप आगे अरियंत कंपनी को सर्विस दे सको, क्लियर। आप हायरिंग सर्विस देने के लिए आप आगे से सर्विस ले रहे हो, तो लोग बोलते हैं ऐसे केस में you will get full ITC, clear है, done। उसके बाद में सेकंड, संदीप also received security service from Protect You Security Limited। सर सिक्योरिटी सर्विस की बात कर लेते हैं। सप्लायर शुड बी कौन, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एंड जो रिसिपिएंट है बड़ा रिसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन, तब जाके आपका सिक्योरिटी सर्विस इज कवर्ड अंडर आरसीएम। बट ध्यान से देखो सर्विस दिया किसने, प्रोटेक्ट यू सिक्योरिटी लिमिटेड, कहने से सिंस प्रोटेक्ट यू सिक्योरिटी लिमिटेड जो कि आपका सप्लायर है इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो ट्रांजैक्शन आपका आरसीएम में कवर्ड ही नहीं है, सो इट विल बी कवर्ड अंडर एफसीएम। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि आपके पास दो सर्विस है जो संदीप ने अवेल की, एक रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, दूसरा सिक्योरिटी, एंड दोनों आरसीएम में कवर्ड नहीं, तो कहने से अमाउंट विल बी हाउ मच, जीरो, अमाउंट विल बी जीरो। तीसरा, टोटल टैक्स पेबल इन कैश इंक्लूडिंग आरसीएम बाय संदीप, आपको वो अमाउंट बताना जिस पे संदीप हैज टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, आपको वो अमाउंट बताना जहां पे संदीप हैज टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं, ओटीएल माइनस आईटीसी, ओटीएल माइनस आईटीसी। अब आपके पास टोटल 3 ओटीएल है, जिसमें से एक ओटीएल तो है बट कवर्ड अंडर आरसीएम, टैक्स विल बी पेड बाय योर रिसिपिएंट, संदीप इज नॉट सपोज टू पे द टैक्स, तो कहने से संदीप के तो वो दोनों आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगी फ्रॉम दिस 5,70,000 वाला सप्लाई, तो 5,70,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, सो इट विल बी 102,600। सर आईटीसी मिलेगा क्या, यस आपकी इनवर्ट सप्लाई के ऊपर आपको आईटीसी मिलेगा, और आपकी दोनों इनवर्ट सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में है, बट आपको आईटीसी तो दोनों का मिलेगा ना, तो आईटीसी मिलेगा, तो बेटा इट इज, and all the condition for availing the ITC have been already fulfilled, so you are going to get the ITC of both purchase। first one is 50,000 का, दूसरा 35, तो I will say 85,000 का 18%, so it is 15,300, तो आंसर will be 87,300, it is your net GST payable, or you can say amount which is payable in cash, that is option D, done। next case scenario number 4, Raj Enterprise एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर अंडर जीएसटी, Raj Enterprise एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर अंडर जीएसटी is engaged in the sale of both taxable and exempt goods and service, they are supplying exempt as well as taxable goods and service in Bhubaneswar, Odisha,
On 20th March 24, they entered into a contract of providing painting service to one of its client, Forest Office. ठीक है sir. The value of the whole contract was pre-decided for 2 lakh. The due date to complete the contract was estimated to be 20th April 24. However, due to some dispute with the client, painting service was stopped on 31st March 24 and only 60% of the work was completed up to 31 March 24. कहीं ना कहीं ये कहां पे जा रहा मालूम है? आपके इनवॉइस चैप्टर पे, जहां पे अगर आप कंटिन्यूसली कोई सर्विस दे रहे हो और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बीच में टर्मिनेट हो जाए, तो 31 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है कि अगर आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बीच में टर्मिनेट हो गया, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, नॉर्मली व्हेन यू इश्यू इनवॉइस विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, बट अगर सर्विस कंप्लीट ही नहीं हुआ, बीच में टर्मिनेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो इस पर्टिकुलर केस में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, यू हैव टू इश्यू इनवॉइस. सर कौन से दिन? बेटा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ टर्मिनेट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ उसी दिन आपको इनवॉइस देना पड़ेगा टू द एक्सटेंट जितना आपने सर्विस प्रोवाइड कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट, राज एंटरप्राइजेस रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर माथुर ऑफ केरला ऑन 25 फॉर सप्लाइंग कंसिस्टिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स. ही सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग 55,000, जिसमें से 10,000 exempt है. Means I can say 45,000 is taxable and 10,000 is exempt. The value of exempt goods is separately mentioned in the invoice and both goods are independent to each other. Applicable rate was 12%. He issued single invoice in respect of both taxable and exempt goods. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ एक और आ गया. द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म एडवाइज द फर्म दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ ई-वे बिल इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू. बहुत सही बोलता है, मतलब कहीं ना कहीं कंसाइनमेंट वैल्यू कैलकुलेट करवाने वाले हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि इनको ई-वे बिल का जरूरत है कि नहीं. The firm had received a GST refund of 50,000 which was sanctioned by the department erroneously and credited to cash ledger of the firm. An interest of 1100 was also payable. तो आपके पास एक तो जो erroneous refund है, तो आपको GST का refund पे करना है. तो आई विल से आपने गलत कितना ले लिया, तो लाइबिलिटी की बात करूं तो GST का रिफंड देना है कितने का? 50,000 का. 1100 का आपको क्या पे करना है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना पे करना है? 1100. नेक्स्ट, द फर्म आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी OTL is equal to 2,50,000 including output tax liability if any on the above mentioned transaction. Opening balance lying in the electronic credit ledger, आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना पड़ा है? 2,60,000. एंड कैश लेजर में बैलेंस कितना पड़ा है? 70,000. ऑल द अमाउंट्स गिवन अबाउट एक्सक्लूसिव. हमेशा डेटा गैदर कर लिया. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव टू सॉल्व 12 to 14. The due date of issuance of invoice and the value of such invoice issued for works contract. तो सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ उसी दिन पे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ उसी दिन पे यू हैव टू रेज इनवॉइस ऑन 31 मार्च 24 टू द एक्सटेंट जितना आपने सर्विस दे दिया. तो कहने से सर्विस 60% का दिया, तो सर एक तो 31 मार्च 24 एंड दूसरा 2 लाख का 60%, that is 1.2 lakhs. So option is correct. Option is option C. Correct option is option C. बहुत लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं 30 days जोड़ के गए होंगे, उन्होंने गलती किया होगा, बट दिस इज सेपरेट केस. नेक्स्ट सर कंसाइनमेंट वैल्यू. ये बड़ा कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब आपका वैल्यू अंडर सेक्शन 15 excluding exempt supply but including
जीएसटी वाला टैक्सेस। तो कहने से 45,000 आपका टैक्सेबल सप्लाई ये आ जाएगा। एग्जाम सप्लाई था 10,000, ये नहीं आएगा, बट इसमें यू हैव टू ऐड जीएसटी एंड जीएसटी वहां पे 12% था। तो 45,000 का 12% that will be 5,400, so total will be 50,400. that is your correct option. exempt add नहीं होता। Next, remaining balance of electronic credit ledger and cash ledger after filing return. सर क्रेडिट लेजर और कैश लेजर का बैलेंस कितना रहेगा? बड़ा पेमेंट चैप्टर में इफ यू आर अवेयर मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था और आपने अपने नोटबुक में इफ यू आर अवेयर आप पूरा का पूरा कैश लेजर का पैराग्राफ लिख रहे थे, बट मैंने एक लाइन के लिए आपको बोला था कि डिफरेंट पेन यूज करना, आप नोटबुक ओपन करोगे आपको मिल जाएगा। सर कौन सा पॉइंट बोलता है? योर क्रेडिट लेजर बेटे योर परचेस का टैक्स आईटीसी कैन बी यूज ओनली अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। बाकी जो भी आपकी लाइबिलिटी है बट यू हैव टू पे कंपल्सरीली फ्रॉम योर कैश लेजर। तो परचेस का टैक्स दैट इज योर आईटीसी क्रेडिट लेजर कैन बी यूज ओनली अगेंस्ट ओटीएल। तो कहने से आप 260 में से ओटीएल माइनस करोगे तो आपके पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना बचेगा? सर क्रेडिट लेजर में बैलेंस बचेगा 10,000 एंड वैसे तो ऑप्शन क्लियर हो चुका है, बट स्टिल कैश लेजर की बात कर लूं, बाकी सारे पेमेंट कहां से करोगे? फ्रॉम योर कैश लेजर। तो 70,000 में से 50,000 एंड 1100 माइनस करोगे तो यू विल गेट अ आंसर ऑफ 18,900। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आर वी क्लियर? पक्का? डन। नेक्स्ट, ये आपका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। मिस्टर अरुण एक रजिस्टर्ड पर्सन इज अ डेल क्रेडर एजेंट। बेटा ये मैंने वैल्यूएशन चैप्टर में कवर किया था, ये हमने वैल्यूएशन चैप्टर में कवर किया था। क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सप्लाई चैप्टर के अंदर कवर था, बट वी हैव कवर्ड इन वैल्यूएशन चैप्टर विद लॉजिक। Mr. Arun एक registered person is a Dell Credor agent of Udar Limited and AST Limited. अरुण एक डेल क्रेडर एजेंट है दो जन का, एक उदय लिमिटेड का एंड एक एएसटी लिमिटेड का। ठीक है, तो एक तरफ उदय लिमिटेड, दूसरा एएसटी लिमिटेड और बीच में हमारा डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट कौन? अरुण। अरुण हमारा डेल क्रेडर एजेंट और यहां से गुड्स आगे बिकेगा। बहुत बढ़िया। मिस्टर अरुण रिपोर्टेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सेल ऑफ गुड्स ऑफ उदय लिमिटेड इन डीसीए कैपेसिटी फॉर 4,50,000 इनवॉइस आर इश्यूड इन द नेम ऑफ उदय लिमिटेड। हमने फाइनली फर्स्ट केस में सामान तो बेचा जहां पे अरुण ने खुद के नाम का इनवॉइस नहीं दिया, तो ऐसे केस में इनवॉइस आर इश्यूड बाय उदय लिमिटेड। तो कहने से सप्लाइज डायरेक्टली बिटवीन सप्लायर टू कंज्यूमर एंड देयर इज नो सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट। तो यहां पे प्रिंसिपल इज डायरेक्टली मेकिंग सप्लाई टू कंज्यूमर। ठीक है सर। Sale of goods of AST Limited in Dell Credor agent capacity for 2,20,000. Invoice are issued by Mr. Arun in his own name. तो ऐसे केस में अरुण भाई ने आगे जाके कंज्यूमर को तो बेचा, लेकिन अरुण भाई ने खुद के नाम का बिल बनाया और कितने में बेचा? 2,20,000। ठीक है सर। To both the principal, he has given guarantee for the realization of payment from customer and to fulfill. He extend short-term transaction-based loan to the customer and charge interest. और हमने बात किया था अगर अरुण खुद के नाम का इनवॉइस नहीं दे रहा तो सप्लाई उदय ने डायरेक्टली कंज्यूमर को किया। देयर इज नो सप्लाई फ्रॉम अरुण। तो अरुण जो लोन फैसिलिटी दे रहा है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट लोन फैसिलिटी। एंड बेटा इंडिपेंडेंट लोन फैसिलिटी बाय अरुण जिसका इंटरेस्ट इज 45,000 इज टोटली एग्जेम्प्ट, इज टोटली एग्जेम्प्ट। एंड सेकेंड केस, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम कस्टमर ऑफ एएसटी
सर यहाँ पे हमको 22,000 का इंटरेस्ट मिला, बट मैं ऐसा बोलूं अरुण तो खुद अपने नाम का एक सेपरेट इनवॉइस बना रहा है, तो सर ये इंडिपेंडेंट लोन फैसिलिटी का इंटरेस्ट नहीं है, ये तो डीले पेमेंट का इंटरेस्ट है। एंड बेटा डीले पेमेंट का इंटरेस्ट विल बी एडेड इन वैल्यू, तो ये आपका 220 की जगह कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। ठीक है सर, व्हाट इज द क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर ऑन विच टैक्स विल बी पेड बाय मिस्टर अरुण। अरुण कब टैक्स पे करेगा, सेल पे, जब अरुण इज इशूइंग इनवॉइस इन हिज ओन नेम एंड द वैल्यू विल बी 2,42,000। एंड एग्जाम सप्लाई कितना, तो बड़े 45,000 वाला जो इंटरेस्ट है दैट इज एग्जाम्ड, दैट इज एग्जाम। आई होप क्लियर। एंड ये 1 मार्क्स वाला तो क्या बोलूं मैं, एकदम सिंपल, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ टेक्नो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका टर्नओवर देखो कितना, 800 करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्यूआर कोड। अब 800 करोड़ बोल दिया, ये मतलब अगर आप ध्यान से टर्नओवर देखोगे तो आपका जो ई इनवॉइस वाला क्यूआर कोड है वो 5 करोड़ भी क्रॉस हो गया, विच इज फॉर एवरी B2B एंड एवरी एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, और दूसरा आपका डायनेमिक क्यूआर कोड विच इज मोर देन 500 करोड़। तो कहने से 800 करोड़ इज मोर देन 5 करोड़ ऑल्सो एंड 500 करोड़ ऑल्सो, बट दिस इज फॉर B2C। नाउ which of the following statement is correct, they are asking. तो invoice issued are required to have QR code irrespective of whether it is issued against B2B supply, B2B से B2C supply, export supply or supply to government department। कहने से everything is correct in first option itself। B2B हो, B2C हो, export हो, government department को supply किया तो भी you have to raise invoice and all। सर क्यों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको सप्लाई करेगा तो उनके लिए एग्जेम्पशन है। इफ यू आर सप्लाइंग टू देम आपको तो जनरेट करना पड़ेगा। फिर बोलता है क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड फॉर इनवॉइसेस इश्यूड फॉर B2B एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू गवर्नमेंट बट नॉट फॉर B2C। बट आपने तो यही नहीं बोला ना कि ये जो 800 करोड़ है प्लस आपने पूछा क्यूआर कोड, आपने कहां बोला डायनेमिक क्यूआर कोड, या फिर आपने कहां बोला ई इनवॉइस के लिए। अगर आप ई इनवॉइस के लिए बोलते तो फिर मैं बोलता नहीं B2C की किसमें जरूरत नहीं है, बट आपने तो एक जनरल क्वेश्चन बोला और आपने क्यूआर कोड लिख के छोड़ दिया। अब इंस्टीट्यूट अदर व्यू ले तो देखना पड़ेगा, बट एज पर माय ओपिनियन सिंस इनका क्वेश्चन जनरल है, they are covering pure only QR code, means it can be normal invoice वाला QR code also, it can be dynamic QR code also, और दोनों turnover cross हो रहा है, तो correct option should be option A। you have to raise document with QR code whether it is B2B, B2C, export or even supply to government department। so your MCQ वाला part is done यहाँ पे, clear। let's come to descriptive part, that is your section B, पहला compulsory question। again I will say it was simple, not so difficult and all, simple सा। MLM Private Limited, a registered person in Udaipur, Rajasthan, engaged in various lines of business, provided the following details regarding the transaction undertook in the month of March। तो सबसे पहले आउटवर्ड ट्रांजेक्शन दे दिया और ये कंपनी है, ठीक है सर, तो अपने को इससे OTL आ जाएगा। गोइंग फर्दर इनवर्ड सप्लाई, इससे अपने को ITC मिल जाएगा, ठीक है सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है जिसमें इन दोनों को पेंडिंग रखते हैं। ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव, इनवर्ड एंड आउटवर्ड आर इंट्रा, सारे ट्रांजेक्शन इंट्रा है, एक्सेप्ट कुछ बोल दिया तो, अदरवाइज डन। सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन, ITC लेने का सारा कंडीशन फुलफिल्ड है। गुड्स का रेट इज 6612, सर्विस का रेट इज 9918। कैलकुलेट नेट GST पेबल। चलिए फटाफट OTL निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है, CGST एंड SGST, ये दो ही तो आपके पास आने वाला है क्योंकि आपका सारा का सारा ट्रांजेक्शन इज इंट्रा।
एडवांस रिसीव फ्रॉम मिस्टर गोकुल फॉर बिजनेस सपोर्ट सर्विस। कहने से गुड्स का एडवांस होता तो बेटा टैक्सेबल ही नहीं होता, क्योंकि गुड्स के केस में एडवांस इज नॉट टैक्सेबल, बट सर्विस के केस में मार्च मंथ में अप्रैल का एडवांस आ गया, बट सर सर्विस का एडवांस इज टैक्सेबल, सर्विस का एडवांस इज टैक्सेबल। तो कहने से 2 लाख पे सर्विस का रेट कितना, सर्विस का रेट इज 9918, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18,000 एंड 18,000। Second, provided commissioning service under pure labor contract to Raj Builder of Jaipur for multi-story residential complex. Sir, pure labor service. ये बेटा अगर आपने pure labor service दिया, single residential unit के लिए दिया तो exempt. बट कहने से ये तो आपका मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, बेटा पूरा का पूरा टैक्सेबल। और बेटा अगेन सर्विस तो 5 lakhs का 9%, so this is 45,000 and 45,000. Going further, stock transferred without consideration to its branch in Jodhpur, branch having same GST number, ये then तो दोनों distinct person ही नहीं है, so the given transaction is not a supply, क्योंकि आप तो खुद को ट्रांसफर कर रहे हो ना। डीम्ड डिस्टिंक्ट सप्लाई कब होता है, व्हेन ट्रांजैक्शन इज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, और ये डिस्टिंक्ट पर्सन कब होते हैं, जब दोनों का जीएसटी नंबर अलग होता। सर यहाँ पे तो जीएसटी नंबर आपका एक ही है, खुद को ही ट्रांसफर कर रहे हो। आउटवर्ड सप्लाई किया टू वेरियस अनरिलेटेड पर्सन, और बेटा अगर आपने अनरिलेटेड पार्टी को सप्लाई किया तो सर वैल्यू क्या लेंगे, सोचो ना। सेक्शन 15 बोलता है वैल्यू शैल बी योर ट्रांजैक्शन वैल्यू इफ बोथ द पार्टीज आर अनरिलेटेड। तो बेटे हम तो आप ही का ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हम तो ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे, गुड्स है, और बेटा गुड्स है तो 5,75,000 का 6%, 34,500 एंड 34,500। Provided warehousing service for kidney beans, red lentils and other pulses, confuse नहीं होना बड़ा, warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetable, it is totally exempt, it is totally exempt। तो अगर आप यहाँ तक का टोटल ले लोगे तो you will get amount 34,500 plus 45,000 plus 18,000, so it will be 97,500, 97,500. This is your output tax liability. Let's talk about ITC. आपने कार रेंटल सर्विस लिया फ्रॉम कारमेन प्राइवेट लिमिटेड, एक अनरजिस्टर्ड कंपनी इन उदयपुर, एंगेज इन कार रेंटिंग सर्विस। MLM प्राइवेट लिमिटेड पेड रेंट ऑन मंथली बेसिस। ये पहली बात आरसीएम सोच लो सर, आरसीएम कब लगेगा, इफ supplier is other than body corporate, service given to body corporate, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ध्यान से देखो आपका जो सप्लायर है क्या वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, कार रेंटल सर्विस किससे लिया, कारमेन प्राइवेट लिमिटेड। तो कहने से आपका जो सप्लायर है, सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो सर हमारे केस में आरसीएम आएगा ही नहीं। ये बेटा आरसीएम नहीं आएगा तो एफसीएम आएगा, लेकिन ध्यान से देख आपका सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड, तो वो जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा। ये जीएसटी चार्ज नहीं करेगा तो यू विल ऑल्सो नॉट गेट एनी आईटीसी, खत्म। सेकंड क्या है, बोलता है इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई वेरियस गुड्स एंड सर्विस। आपने कुछ गुड्स और सर्विस अवेल किया तो सर 7,50,000 का गुड्स है तो बेटा 66%, इट विल बी 45,000, सर्विस है 2.5 लाख की, तो 2.5 लाख के सर्विस है तो 9%, 22,500, 22,500। कंपनी ने पे किया 50,000 टू मिस्टर अजय एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सिटिंग फीस। कहने से डायरेक्टर को अगर आपने रेम्युनरेशन पे किया, सिटिंग फीस पे किया टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इट इज कवर्ड अंडर आरसीएम। तो कंपनी हाउ टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, तो कंपनी टैक्स पे करेगी, तो आई विल से एड टू लाइबिलिटी एंड दूसरा ऑल्सो एड टू आईटीसी, क्योंकि है तो आपके बिजनेस का परचेज तो आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा। तो 50,000 का 4,500, तो ये आपका आईटीसी हो गया। सर कितना हुआ, 45,000 प्लस
22,500 प्लस 4,500 72,000 72,000। तो आपने ये इफेक्ट तो दे दिया, ये इफेक्ट बाकी है। तो क्या करोगे, ओटीएल माइनस आईटीसी। सर ओटीएल कितना, 97,500 97,500 माइनस 72,000 72,000। 25,500 25,500 प्लस आरसीएम वाला टैक्स, यू हैव टू पे टैक्स 4,500 4,500। सो द टोटल विल बी 30,000 30,000। दिस इज योर नेट जीएसटी पेबल इन कैश। क्लियर है? गोइंग फर्दर, नेक्स्ट सर सेकंड वाला पॉइंट अपन ने कंसिडर नहीं किया, मैं बता दूं आपको। कंपनी मेड डोनेशन ऑफ 4.5 लाख टू लोकल ओल्ड एज होम, जो कि कौन है, अनरजिस्टर्ड। तो बेटा अगर आपने डोनेशन दिया, डोनेशन और ऊपर से वहां पे विद द नेम ऑफ द कंपनी एम्बेडेड, ठीक है ना। पहली बात तो डोनेशन इज नॉट अ कंसिडरेशन, और ऊपर से अगर वहां पे अगर कंसिडरेशन मान लिया, चलो हमको प्रमोशन मिला, तो सप्लायर हैव टू पे द टैक्स, बट सप्लायर इज आल्सो अनरजिस्टर्ड। तो बड़ा ऐसे केस में टैक्स लग के ही नहीं आएगा, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी आईटीसी। सो दिस इज योर केस आल्सो डन। सो आपका नेट जीएसटी पेबल इन कैश विल बी 30,000 30,000 एज पर माय ओपिनियन। Second, Ajay, a registered person, provided the following details about transaction entered into by him in the month of July. ठीक है, अजय एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने कुछ ट्रांजेक्शन दिया। कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑन विच अजय शैल पे जीएसटी। आपको वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है जहां पे अजय हैव टू पे टैक्स। मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा वैल्यूएशन चैप्टर देख लेते हैं। ही सोल्ड गुड्स टू वेलनेस फार्मा in 3,000 units at the rate 400 each. Under section 206C1H, he is required to collect TCS. But if you are aware, but सारे के सारे taxes add कर दो other than GST. बट एक क्लैरिफिकेशन था कि इनकम टैक्स का TCS is not to be added in your value। तो इनकम टैक्स का TCS ऐड नहीं होएगा, तो हम तो सीधा सीधा 400 इंटू 3,000, इट विल बी 12 लाख का वैल्यू। It will be 12 lakh का value. Second, under a contract with state government, he sold goods to economic weaker section families. 1000 का प्रोडक्ट है, यूनिट प्राइस 400 है, लेकिन 200 में बेचा क्योंकि 200 रुपया स्टेट गवर्नमेंट से क्या मिला, सब्सिडी। और बेटा स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी इज नॉट अ कंसिडरेशन, तो हम तो क्या लेंगे, 200 इंटू 1000, दैट इज 2 लाख। क्लियर? नेक्स्ट, आपने क्रेडिट नोट इशू किया वर्थ ₹1.5 लाख, नेट ऑफ जीएसटी एज डिस्काउंट टू इट्स रजिस्टर्ड डीलर हु परचेज मोर देन 5,000 यूनिट्स बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। पहली बात तो आपने ऑलरेडी अग्रीमेंट कर रखा है विच इज डिक्लेयर्ड ऑन 1/10। कहने से पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, और पोस्ट सप्लाई में 3 कंडीशन था। पहला कंडीशन, इट शुड बी एज पर अग्रीमेंट। तो सर अग्रीमेंट तो है। About discount provided invoice wise, ये बड़ा invoice wise मतलब it should be linked to invoice, तो कहने से it is linked to the invoice। तीसरा, ITC should be reversed by the recipient, and in the given case ITC is reversed by the recipient since all the 3 conditions are fulfilled। बड़ा वैल्यू में से ये 1.5 लाख क्या हो जाएगा, माइनस। डिस्काउंट shall be excluded from the value of supply। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू ओल्ड एज होम फॉर कंसिडरेशन 1 लाख, नॉर्मल वैल्यू 2 लाख था, बट हमने कितना चार्ज किया, 1 लाख। ओके, सम वेदना एंड एनजीओ registered under section 12AA of the income tax act gave them a subsidy of 30,000 to acknowledge his service to elderly people living in old age home। बट यहाँ पे आपने सब्सिडी दिया 30,000 रुपए का, 30,000 का सर्विस दिया। अज्यूम कर लेंगे
कि भाई इट इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, क्योंकि आपने 30,000 दिया तो ये लमसम बड़ा सब्सिडी तो दिख नहीं रहा है, तो आई विल अज्यूम लिंक टू द प्राइस, और बड़ा एनजीओ का सब्सिडी टू बी एडेड इन वैल्यू, सो योर वैल्यू शुड बी 1,30,000. And after analysis of the sale report of first quarter, he decided to give discount. बेटा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, लेकिन आपने पूरा का पूरा सेल होने के बाद में आपने एनालिसिस करके डिसाइड किया टू गिव डिस्काउंट. कहने से पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, बट इट इज नॉट एज पर अग्रीमेंट, तो हम इसको माइनस नहीं करेंगे. एंड टेक टोटल, खत्म. क्लियर है? बट मेक श्योर कि 1.5 लाख को माइनस करो. क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्वी लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज है. प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई. ये बड़ा आपको परचेज का डिटेल दिया है. ये परचेज मतलब पक्का तुमसे पूछेगा आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट आईटीसी अवेलेबल टू पूर्वी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. पूर्वी लिमिटेड है विद नेसेसरी एक्सप्लेनेशन एंड अज्यूमिंग ऑल अदर कंडीशन अनलेस जो मेंशन्ड है, बाकी सब फुलफिल हो चुका है. तो कितने का आईटीसी मिलेगा? आपने गुड्स परचेज किया फॉर एक्टिविटी रिलेटिंग टू सीएसआर. एंड बेटा इफ यू आर अवेयर, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज FA, बेटा सीएसआर एक्टिविटी के लिए कुछ परचेज करोगे तो योर आईटीसी इज टोटली ब्लॉक्ड. तो आईटीसी पूरा का पूरा ब्लॉक्ड है. आईटीसी का अमाउंट विल बी 0. सेकेंड, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया इन 5 लॉट्स. 3 लॉट्स आ गए, लेकिन आखिरी लॉट, रिमेनिंग लॉट्स आने वाले सितंबर में, और तुम कौन से मंथ का आईटीसी निकाल रहे हो? अगस्त का. और कहने से एज पर प्रोवाइजो टू 16(2), if your goods are supposed to be received in lots but ITC is available on receipt of last lot या last installment, तो सर इस मंथ में तो 0. तीसरा, कंपनी ने आउटडोर कैटरिंग एक्सपेंस पे किया फॉर द लंच ऑफ इट्स फैक्ट्री एम्प्लॉइज. और ध्यान से देखो, ये कंपनी का पॉलिसी था बट देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन. और बेटा अगर मैं बात करूं 17(5), बेटा कैटरिंग सर्विस पूरा का पूरा ब्लॉक्ड, नो आईटीसी इज अवेलेबल. तो यहां पे भी आईटीसी कितना? 0. गुड्स परचेज किया फ्रॉम ओम ट्रेडर. ऑल गुड्स एंड इनवॉइसेस वर रिसीव्ड बाय द कंपनी इन अगस्त 24. But one invoice out of this invoices has not been furnished by the supplier in the statement of outward supply IFF. बट सप्लायर ने इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी में इनवॉइस प्रेजेंट ही नहीं किया, तो कहने से तुम्हारे टूबी में नहीं दिखेगा, तो ये 50,000 का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. सो आईटीसी अवेलेबल इज 1,50,000. Next, raw material purchase किया to manufacture finished goods. Such finished goods to be sold to potential customer under scheme buy one get one free. But if you are aware, supply chapter का clarification था. अगर आपने सेल्स प्रमोशन स्कीम बाय वन गेट वन फ्री बेचा, तो यहाँ पे कुछ फ्री नहीं है. इट इज टू सप्लाई एट अ सिंगल प्राइस. सो द गिवन कॉम्बिनेशन इज इधर कंपोजिट और मिक्स. तो बेटा जो भी आप सप्लाई करोगे आपको पूरे 1,50,000 का आईटीसी मिल जाएगा. तो पूरे में यू आर गोइंग टू गेट अ आईटीसी ऑफ 3 lakhs. क्लियर? डन. गोइंग फर्दर, examine the following independent cases and determine whether the services are taxable or not. आपको बताना taxable है कि नहीं. पहला, Dhruv Printing Press, a registered entity under GST, received an order of 1.5 lakh from Vishwakarma Technical Institute, a private ITI providing courses notified. ये बड़ा बोलना चाहता है अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज वाला इंस्टीट्यूट है, और उनको आपने सर्विस दिया फॉर प्रिंटिंग ऑफ प्री एग्जामिनेशन आइटम लाइक क्वेश्चन पेपर, OMR शीट, आंसर बुकलेट्स रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन. मैं ऐसा बोलूं, सर्विस बाय नहीं है, सर्विस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है. और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को तो एक ही सर्विस अगर आपने दिया तो एग्जम्प्ट है. सर कौन से? एग्जामिनेशन एंड एडमिशन रिलेटेड सर्विस, एंड यू कैन से दिस इज एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विस, तो बट दिस सर्विस इज टोटली एग्जाम. ये आपका अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन. सर क्या बोलता हमारा अमेंडमेंट?
State Board of Education, a registered entity, charged 50,000 per year as a affiliation charges from a school run by the Dharmphal Trust, registered under section 12AA. So हर अमेंडमेंट ये बेटा नहीं, अगर आपने एफिलिएशन सर्विस गवर्नमेंट स्कूल्स को दिया होता तो एग्जाम, ये तो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का है बेटा, पूरा का पूरा टैक्सेबल। वी केयर हॉस्पिटल रजिस्टर्ड एंटिटी, इन्होंने चार्ज किया 19,500 फॉर 3 डेज फ्रॉम मिस्टर साहिल who was admitted in intensive cardiac care unit। तो कहने से पर डे का चार्जेस 6,500 हो रहे पर डे। सर 5,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, लेकिन एक्सेप्ट ICU, ICCU, NICU। बट अगर आपका इंटेंसिव केयर यूनिट्स है, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, तो ICU रूम्स का चार्जेस, बट ICU रूम्स का चार्जेस आर टोटली एग्जाम, फिर वो कितना भी हो। सो कहने से ये तो पूरा का पूरा एग्जाम। एंड चौथा, सिटकेयर हॉस्पिटल, a registered entity, entered into arrangement with स्वादिष्ट कैटरर्स। बेटा कैटरर से सर्विस लिया किसने? सिटकेयर हॉस्पिटल ने। गुड सर। A registered entity to supply food to inpatient as per advice of the doctor. Swadhisht Caterers sends monthly bill to hospital for the food supplied by them to the admitted patient of hospital. Determine the taxability of Sitcare hospital। पूरा कहानी दिया, कैटरर्स ने सिटकेयर को दिया और सिटकेयर तो आगे जाके पेशेंट को सप्लाई करता है, तो कहने से सिटकेयर जो पेशेंट को सप्लाई करेगा, और ये भी आपका सप्लाई चैप्टर में क्लैरिफिकेशन है कि फूड सप्लाइड टू पेशेंट ऑन एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स, बट इट इज नथिंग बट अ कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई इफ योर प्रिंसिपल सर्जरी इज एग्जाम, तो बेटा ये भी क्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एग्जाम। तो सिटकेयर की टैक्सेबिलिटी की बात करूं तो सिटकेयर ने जो पेशेंट को सप्लाई किया डेट इज एग्जाम, बट अगर आपको सेफर साइड में रहना, आप बोल सकते हो कि कैटरर्स ने जो सिटकेयर को प्रोवाइड किया डेट इज टैक्सेबल, बट आगे जाके जो सप्लाई करो डेट इज टोटली एग्जाम। क्लियर है भाई? डन। गोइंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 7A। Mr. Ranjan availed ITC of rupees 1 lakh in GSTR 3B for the month of June। रंजन ने 1 लाख रुपीस का ITC ले लिया था। एक तरीके से रिपीटेटिव क्वेश्चन फ्रॉम पेमेंट चैप्टर। The output liability for June was nil। मतलब आपके पास ITC इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपया पड़ा है for the month of June। His intra-state outward supply for the month of July was 5 लाख excluding GST। GST को हटा के 5 लाख का आपका आउटवर्ड सप्लाई है। He utilized the availed ITC against the output liability for the month of July while filing 3B। तो ये जो हमारा पर्सन है, ये जुलाई मंथ का जो रिटर्न फाइल कर रहा था 3B, उसमें इसने मस्त वाला क्या ले लिया? ITC। इसने मस्त वाला ITC ले लिया। अब यहाँ पे लाइबिलिटी 18%, तो 5 लाख का 18% 90,000 का आपका OTL था एंड आपने यूज कर लिया ITC। मतलब अभी भी यहाँ पे 10,000 का बैलेंस बचा है और ITC कितना लिया आपने? 90,000। Mr. Ranjan found on 22nd September 24 that he wrongly availed ITC of 1 lakh in the month of June। तो जून में आपने जो 1 लाख का ITC गलत लिया, वो आपने जो ITC लिया वो आपने गलत लिया। लेकिन ITC गलत अवेल करना इज नॉट एन इशू, अवेल करके यूटिलाइज करना इज एन इशू। और कहने से आपने गलत यूटिलाइज, रॉन्गली यूटिलाइज्ड ITC कितना? सर डेट इज 90,000, तो इंटरेस्ट तो वो रॉन्गली वाले पे लगेगा। He reversed the unutilized amount of wrongly availed ITC standing in the credit ledger on 30th September 24 and paid the utilized amount of ITC by cash। ठीक है सर। उसने क्या किया? उसने रिवर्स कर दिया अनयूटिलाइज अमाउंट ऑफ ITC
कौन सी डेट पे? 30 सितंबर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल अंडर द जीएसटी लॉ। अगर यहाँ पे रंजन ने जुलाई 19 को जून का रिटर्न फाइल कर दिया और जुलाई का रिटर्न उसने फाइल किया 25 अगस्त, the due date of filing 3B is 20th day of the following month, but the due date was extended to 22nd August for the month of July 24। तो अगर अनयूटिलाइज गलत, अगर आपने आईटीसी यूटिलाइज कर लिया तो एज पर सेक्शन 15 आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। सर कहां से कहां तक? फ्रॉम डेट ऑफ utilization of ITC till date of reversal। तो जब तक आप रिवर्सल नहीं कर देते बड़ा वो दिन तक आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो मेरे को मालूम है 90,000 का 18% का इंटरेस्ट आएगा, मल्टीप्लाई बाय डेज अपॉन 365। सर रिवर्सल डेट क्या है? बट रिवर्सल डेट इज 30 सितंबर को आपने रिवर्स किया। यूटिलाइजेशन डेट क्या मालूम है? अगर आपको याद है अपन ने नोट पढ़ा था, सम सॉल्व किया था, तो अगर आपका यूटिलाइजेशन डेट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तो बेटा जून मंथ की कहानी तो ऐसे ही दी है, क्योंकि जून मंथ में हमने सिर्फ आईटीसी अवेल किया था, आईटीसी तब थोड़ी यूटिलाइज किया। यूटिलाइज तो जुलाई के टाइम किया था और जुलाई का रिटर्न कब फाइल किया? 25 अगस्त। फाइल करना कब था? 22 अगस्त। तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो सर ड्यू डेट वाज 22 बट फाइल्ड ऑन 25, हम तो अर्लियर कौन सा लेंगे? 22 तारीख। तो बेटा 22 अगस्त से लेके 30 सितंबर यू आर सपोज टू पे इंटरेस्ट। तो मस्त वाला डेज निकाल लो कि अगस्त में 31 डेज, 31 में से यू हैव टू एक्सक्लूड 21 डेज, क्योंकि 22 को तो आपने आईटीसी ले लिया था गलत, तो उस दिन से इंटरेस्ट लगेगा। तो फर्स्ट केस में 10 दिन अगस्त का, सितंबर का 30, तो काइंडली पे इंटरेस्ट फॉर 40 डेज एंड आपको अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर विद दिस? डन। Question number 8 का A, as per section 7 of the CGST Act, for the purpose of goods and service tax, the expression supply includes all form of supply of goods, service or both, sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, made or agreed to be made for a consideration by the person in the course of business। पूरा का पूरा 7(1)(a) लिख दिया। चाहते क्या हो? Discuss as per the provision of CGST when an activity can be treated as supply even if there is no consideration or even if it is not in the course or furtherance of business। but they are talking about exception। कब ट्रांजैक्शन इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई बन जाएगा? कब आपका ट्रांजैक्शन इफ इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो भी सप्लाई बन जाएगा। इट मींस यू हैव टू प्रेजेंट 7(1)(b and you have to present pura ka pura 7(1)(c). Import of service for a consideration, it is always supply whether or not it is in the course of furtherance of business। and 7(1)(c), for activities even if without consideration, permanent disposal of business asset where ITC was taken, transaction between related person or distinct person। तीसरा क्या था? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। एंड चौथा इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम इट्स एस्टैब्लिशमेंट एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो पूरा का पूरा आपको सिर्फ सेंटेंस लिखने थे एंड 5 मार्क्स पॉकेट में, और क्या चाहिए जिंदगी में? क्लियर? बी में जाते हैं एंड बी में ऑप्शन भी था, explain the provision relating to validity period of the registration certificate issued to CTP or NRTP। क्या वैलिडिटी रहेगा? ये 90 नहीं बोलना, it was days specified in application or 90 days whichever is earlier। तो जितने दिन के लिए आपने एप्लीकेशन किया और 90 डेज whichever is earlier, however extension is possible for another 90 days।
List the deficiency in the erstwhile value added taxation which led to evolution of GST. VAT में ऐसा क्या प्रॉब्लम था? तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉड्यूल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. वैट में क्या इशू? इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर वैट, तो वॉट एवर टैक्सेस यू हैव पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ सर्विस टैक्स एंड ऑल, आपको उनका आईटीसी नहीं मिलता था. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे टैक्स ऑन टैक्स स्टिल गोइंग ऑन. तो ये केस था. बेसिकली आपका कैस्केडिंग चल रहा था एंड क्रॉस यूटिलाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट टैक्सेस वो यहां पे भी अलाउड नहीं था. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. उसके बाद में सेक्शन 31 ऑफ द CGST एक्ट requires that a tax invoice shall be issued before or at the time of delivery or removal. Specify the situation where a tax invoice can be issued after delivery. Discuss the provision relating to issue of tax invoice and delivery challan in case of transportation of goods in semi knockdown. तो इन्होंने बोला कुछ केसेस बताओ जहां पे इनवॉइस आप बाद में इशू कर सकते हो. बट मैंने, अगर आपको याद है तो डिलीवरी चालान वाला जो इनवॉइस में टॉपिक था उसको स्टार करवाया था कि दे में आस्क यू एनी टाइम फॉर 2 to 3 marks बट आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड 5 marks. बट होप यू अंडरस्टैंड. तो बेटा यहाँ पे कुछ केसेस जहां पे आप इनवॉइस बाद में इश्यू कर दो, अभी गुड्स को भेज दो ऑन अ डिलीवरी चालान. कौन से केसेस थे मालूम है? जॉब वर्कर के भेजा, रीजन इज अदर देन सप्लाई. फिर अगर आपके गुड्स जा रहे हैं सेमी नॉकडाउन कंडीशन या कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन इन बैचेस और लॉट्स, तो पहला जो लॉट जाएगा उसके साथ इनवॉइस जाएगा, बाकी लॉट्स के साथ में व्हाट यू आर गोइंग टू सेंड इज डिलीवरी चालान. So this is your paper discussion. I will say overall IDT part was very simple. Achieving 40 was achievable. 40 I will say achievable out of 50 marks. बट अगर आपने अच्छा मेहनत किया था, इफ योर कंसेप्ट वॉज क्लियर, तो आपने MCQ में भी अच्छा स्कोर किया रहेगा एंड डेफिनेटली यू कैन गेट इवन मोर गुड मार्क्स. क्लियर विद दिस? Thank you so much.